सुखी। नानक सिमरत एक। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिए। सबनां दा वेसा। पवड़ी जाति दे क्या हथ। सच परखिए। मोहरा होवे हथ। मरिए चखिए। जाति दे क्या हथ। सच परखिए। मोहरा होवे हथ। मरिए चखिए। सच्चे की सिरकार। जुग जुग जानिए। हुक्म मन्ने सिरदार। दर दीवानिए। फुरमानी है कार। खसम पठाया। तबल बाज विचार। शब्द सुनाया। एक हुए असवार। एक ना साखती। इकनी बदे पार। एक ना ताखती। एक होए असवार। एक ना साखती। इकनी बदे पार। एक ना ताखती। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक। हलत पलत सवार देने वाले सच्चे रहबर जुगो जुग अटल। रूहानियत दे मजस्बे शब्द गुरु अमृत के दाते। दसां पातशाहियां दा आत्मक स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद मान रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਰਾਗ। ਇਸ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 27 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 142 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਸੂਝ ਅਕਲ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚ ਵੰਡੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੋਤਰ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਚੀ ਗੋਤਰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਗੋਤਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਘੜੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ। ਮਨੂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
और मनु सिमरती कहती है कि जिहड़ा ब्रह्मा आ कहते उहदे मुख तो पैदा होया ब्राह्मण। ब्राह्मण कित्थों पैदा होया? ब्रह्मा जी दे मुख तो। खतरी कहते भुजा तो पैदा होया, बाहां तो, इस करके वो लड़दा है। वैश कहते पट्टां तो पैदा होया और शूद्र कहते पैदा तो पैदा होया, इस करके धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, ना धर्म की गल कर सकता है। इत्थों तक कि उस ग्रंथ में लिखा गया कि जे कोई शूद्र किसी धार्मिक ग्रंथ नूं सुन लैंदा आ ते उहदे कंन दे विच सिक्के पगला के पा दिते जाण, ते जे कोई शूद्र इस धर्म ग्रंथ नूं पढ़न की कोशिश करदा आ ते उहदी जुबान कट दित्ती जाए। ये हालात सी उस वेले जिथे जमदे सार ही एक थप्पा ला दिता जाता सी कि इस जात का इस वर्ण का है। बलिहारे जाइए सतगुरां तो जिन्हां ने सानू इस पखंड विचों बाहर कढ लिया, जिसने सानू जिंदगी जीण का ढंग सिखा दिता। बलिहारे जाइए ऐसे गुरां तो जिन्हां ने सानू जिंदगी जीनी सिखा दी, नहीं तो साडे ते थप्पे लग गए सी कि ये इस जात दा आ, ये इस जात दा आ। ये सतगुरु ने कृपा की, जंजाल नूं साडे सिर तो तोड़िया, इनू कढ़िया, फसो ना इस जंजाल विच। हुण सतगुरु जी अज जिहड़ी पौड़ी च आपां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही ख्याल सतगुरु जी साडे नाल सांझे कर रहे हैं। आओ विचारा आरंभ करन तो पहला गुरु घर की मर्यादा नूं निभाइए। दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो, प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाति दे क्या हथ सच परखिए, कहंदे उस मालिक दे दर ते जात नहीं तेरी पुछी जानी। तू किस जाति का है, किस बरादरी का है, तेरा रूप की है, रंग की है, ये नहीं तेरे तो पूछया जाना। उत्थे ते ये पूछया जाना कि सच परखी है। कोई सच्चा सौदा लेके आया। जिन्हों बगदाद दे विच गुरु नानक पातशाह जी नूं सवाल होया सी कि पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के तुर्क मालोई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजो दोवें रोई। गल ते शुभ अमलां दी सी, पर वर्ण वंड ने सानू सारियां नूं अलग करके रख दिता। और मनु सिमरती दे दो गल्लां आप जी नाल करांगा जी। मनु सिमरती दे विच ये लिखिया होया कि जेकर कोई शूद्र चोरी करदा फड़िया जाए ते राजे का फर्ज बनता है उन्होंने सजा दी जाए। ये तो गल समझ आती है कि जिहड़ा चोरी करे उन्होंने सजा मिले, पर शब्द नाल वरतिया शूद्र। कहते जे कोई शूद्र चोरी करदा फड़िया जाए तो राजे का फर्ज बनता है उन्होंने सजा दी जाए। पर उहदे उल्ट कहते जेकर कोई ब्राह्मण चोरी करदा फड़िया जाए तो उहदे ते कोई कसूर नहीं लाया जाएगा, उहदे ते कोई इल्जाम नहीं लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राजे का फर्ज बनता सी ब्राह्मण बारे देखना। ये न्याय बनाए हुए मनु सिमरती। और मनु नूं सिक्खी जमा चंगी नहीं लगती जी। मनु सिमरती का ते सिक्खी का आपस दे विच विरोध है। मनु कहता है आ चीज वर्ण वंड है, तो गुरबाणी कहती है नहीं। गुरबाणी कहती है दसो किद्दां वर्ण वंड हो गई। मैं तीजे पातशाह का एक शब्द तुहाडे नाल साझा करदा, वेखियो।
तीसरे पातशाह जी कहते हैं कि जात का गर्भ ना करियो कोई। भाई कादा जात का गर्भ कर रहे, कादा? ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत हुई। कहते कादा हंकार, सारा कुछ ते उस मालिक का पैदा किया होया। कहते कादा हरकार, जात का गर्भ ना करियो कोई। कहते कादा जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। वो मूर्खा, जात का हंकार करना मूर्खता ही है। इस गर्भ ते चलत है बहुत विकारा। कहते विकार चलते है, ये हंकार आ जाता है बंदे अंदर, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। जात का कादा हंकार, सतगुरु कहते कादा हंकार। चारी वर्ण आखे सब कोई। सारी दुनिया कहती है चार वर्ण है, ब्राह्मण खतरी वैश्य शूद्र, पर सतगुरु कहते नहीं, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। कहते चार श्रेणियां नहीं, ये उस अकाल पुरख तो सारा कुछ पैदा होया आ। तुसीं किहड़े पासे लग गए हो? कहते ये चीज़ां चंगियां नहीं है। सतगुरु जी ने बड़ी सोहनी उदाहरण दे के समझाउण दा यतन कीता। कहते माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। कहते कादा वो मिट्टी दिया भांडे कादा हंकार करी जाना आ। पंच तत्त मिल देही का आकार। कहते पंजा तत्ता दा मिल के ये शरीर बन गया। घट वध को करे विचारा। कहते जात ते तां मनीए न जे कोई छेवां तत्त होवे किसी को। सारिया दा शरीर पंजा तत्ता दा बनिया, किसी दा छेयां दा बनिया है। फिर सतगुरु कहते कादा हंकार। कहत नानक यह जियो कर्म बंद होई। बिन सतगुर भेटे मुक्त न होई। कहते ये जीव कर्म बंद है, अपने कम्मां दा बन्निया होया है। बगैर सतगुरु तो इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इत्थे जात का कोई खेल नहीं। जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। कहते कादी जात पूछ रहे, जोत जान सारे। यही सवाल उदो कबीर साहब नूं बामण करदा सी, ते कबीर साहब ने तगड़े हथी लिया जी। फिर उन्हां दे सवाल अज तक कोई उत्तर नहीं दे सके। कबीर साहब जी कहते ने गर्भ बास में कुल नहीं जाती। कहते जो मां के गर्भ च बच्चा सी उदों किहड़ी जात दा सी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किहड़ी जात दा सी? जो मां के गर्भ च सी किहड़ी जात सी उदों? गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। कहते ते उस मालिक तो पैदा होया सारा कुछ। कहते कादा कादा हंकार कर, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। कबीर साहब ने बड़ा तंग करते थे।
क्योंकि गढ़ सी ना कांची बनारस, एक गढ़ सी जिथों ये जात वर्ण वंड सारा कुछ चलिया सी ते सवबी कबीर साहब का जन्म ही उत्थे होया। इतफाक नाल कबीर साहब का जन्म ही उस जगह ते होया जिथों एक गढ़ शुरू होया, शुरुआत हुई जिथों। ते लोकां दे कहण मुताबक कहते कबीर साहब शूदर सी। कबीर साहब कहते मैं शुदर किवें हो गया? बामण कह कह जन्म मत खोए, कहते मैनू समझा ते सही, काहदा हंकार करके बैठा है तू? बामण है काहदा? ये बाणी च लिखे है जी। गुरबाणी नूं पढ़ के वेख लो, गौड़ी राग अंदर भगत बाणी शुरू होंदी है, उत्थे कबीर साहब दे शब्दां दे विच एक शब्द है, वो कहंदे तू शूदर है, तू नीवा आ। कबीर साहब कहंदे मैं नीवा किवें हो गया? कहंदे तू ब्राह्मण है ना, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, ब्राह्मणी दा जम्मिया होया, तो आन बाट काहे नहीं आया। फिर कहंदे कि तो होर पैदा हुंदा, तू मां दे गर्भ चों क्यों पैदा होया? मैं भी ते मां दे गर्भ चों ही पैदा होया। फर्क दस की है दोनों, तेरे विच ते मेरे च फर्क दस की? तुम कत बामण हम कत सूद, तू बामण है मैं शूदर हाँ। मैं मनन लई तैयार हाँ, मैनूं एक गल दा जवाब दे। मैं मन जाना मैं शूदर हाँ, तू बामण है, तू उच्चा आ क्योंकि ब्रह्मा दे मुख चों पैदा होया। मैं शूदर हाँ, मैं पैर चों पैदा होया ना, मैं मान लाऊंगा। मैनूं एक गल दा जवाब दे, आ जा मैं अपने इत्थे खून कढना है, तू भी आपदे खून कढ के विखा, इत्थों दुध कढ के दिखा अपनी रग चों। हम कत लहू तुम कत दूध, कहते जे तेरे च हिम्मत आ जा, आ ले मैं अपने हाथ कटना आ, ये चो खून निकलूगा, तू अपनी रगा चो दुध कढ के विखा, मैं मान जाऊंगा तू वखरा है तो मैं वखरा है, मैं तैयार हाँ, तू करके ते विखा। कोई जवाब नहीं। हम कत लहू तुम कत दूध, कहते कढ हुण दुध, हुण तेरी रगा च दुध दिखा ना, फिर एवें ही रोला पाई जाना मैं वखरा है तो तू वखरा है। कहते छड्डो यही गल भगत रविदास साहब नूं लोग कहंदे सी, कहंदे तुसीं चमियार हो, तुसीं चमियार हो, चम दा काम करन वाले चमियार। भगत रविदास साहब कहंदे अच्छा मैं चम दा काम करदा इस करके मैनूं चमियार कहंदे हो? कहंदे मैनूं जवाब दो तुहाडे तन कदे बने होए? ये चम दे नहीं बने, इस हिसाब नाल तुसीं सारे चमियार होए। तुसीं ते आपदे चम लई की कुछ करदे हो? चमरता गांठ न जनेई, लोक गठावे पनही, आर नहीं देह तोपो, नहीं रामवी ठाओ न रोपो, लोग गंठ गंठ खड़े विगुचा, हों बिन गंठे जाए पहुंचा। तुसीं सारी दिहाड़ी सवेर तो लैके शाम तक इस शरीर बारे सोची जाते हो, तो तुसीं भी चमियार होए, मैं कल्ला क्यों होया? जवाब दो। कहते लोग गंठ गंठ खड़े बेगूचा, हों बिन गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। मैं नहीं इस चक्कर च पैंदा है, तुसीं पई चलो, मैनूं तुहाडी फिक्र नहीं कहंदी। इस करके सतगुरु जी कहंदे जात दा गर्व नहीं करना। पर अफसोस ये होया जी, जिहड़ा गुरु सानू कही जाता है कि जात दा हंकार नहीं करना, उसे गुरु दा प्रकाश करके उही गुरुद्वारे जाता पाता दे नां ते बनाए हुए। वेख लो, ये रविदासियां दा है, ये जट्टा दा है, ये फलाणियां दा है, ये फलाणियां दा है। ये गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि जात का गर्भ न करियो कोई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। मूर्ख है जेड़े जात का हंकार करते ने, पर उसे गुरु का प्रकाश करके
कोई कहेगा मैं फलाना आ, मैं फलाना आ, मैं फलाना आ, ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ जी बड़े। पर सतगुर कहते हथ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ घूम रहा आ, मौत हो जानी है, ये वेख ले तेरी इच्छा है कि। फिर सतगुर कहते सच्चे की सिरकार जुग जुग जानी है, कहते उस मालिक दी सरकार है, जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोई। जिहदी सरकार हुंदी है सारा कुछ उहदा हुंदा है। इत्थे सरकार किहदी है? सच्चे मालिक दी, अकाल पुरख दी सरकार है, उहदा हुक्म चलदा है, ओदी हुक्म दी पालना करनी पैनी है। कोई भज नहीं सकता, कोई दौड़ नहीं सकता इस तो। हुक्म मन्ने सिरदार दर दीवानी है, कहते हुक्म मनना पैना है, हुक्म तो भजिया नहीं जाना। हुक्म मन्ने सरदार, क्योंकि सच्चे दी सरकार है तो सानू हुक्म मनना पैना है। उस सच दी सरकार दी हुक्म मनना पैना है। उहदा हुक्म की है? जहर लेके ना घूम, हाथ च ना घूम जहर लेके। सतगुरु जी की बाणी नूं पढ़ो, सतगुर कहंदे ना घूम एवें जहर लेके हाथ च, मर जाएगा। तैनूं लगदा है कि जहर मेरे हाथ च ही है, मैं किहड़ा खाधा है। कई बार हुंदा है ना, बंदा हाथ च ही जहर लेके घूमे ते वो कहंदा मैं किहड़ा खाधा, मैं ते मूँह कोले लैके ही नहीं गया। पर सतगुर कहंदे जे किते मूँह कोले आ गया ना फिर मर जाएगा, बचना कख नहीं तेरा। इस करके कहंदे उस सच्चे दी सरकार नूं समझ, उहदे हुक्म नूं समझ, मन्निया कर। उहदा हुक्म है कि सारे अंदर इक्को मालिक दी जोत है, उहनूं वेख। कोई भी वखरा नहीं है, ना कोई नस्ल के तौर पर, ना कोई जात के तौर पर, ना रूप के रंग के, कहते कोई वखरा नहीं, सारे ही उस मालिक ने पैदा किए हुए। इत्थे ते बोलियां का बखरेवा पै जाता है, कदे जात का पै जाता है, किन्ने बखरेवे हैं जी। तुसीं वेख लो बहुतियां लड़ाइयां जातां पातां दे नां ते ही होंदियां। और उन्हां समयां दे विच वेखो जदों कोई रूल नहीं सी, कोई अनुशासन नहीं सी, कोई सरकार नहीं सी, कोई लॉ नहीं सी, उन्हां हालातां दे विच भगत साहिबान किद्दां रहे होने हैं। अज तो आप किसी को जो कुछ कह दिए ना, लॉ बनया होया, जदी अगले नूं सजा हो जाती है कि फलाने नूं फलानी जाति ना बुलाया जा रहा, जदी सजा हो जाती है। अज तो लॉ बन गया ना, तुसीं उन्हां समय के हालात वेखो जदों कोई लॉ नहीं सी, जदों शूदर नूं धर्म ग्रंथ नहीं पढ़न दिते जांदे सन, धर्म दे नां, धर्म दा नां लेना भी उन्होंने माड़ा सी। कहते जिस रस्ते ते शूदर तुरिया जावे ना, उस रस्ते ते और नाल दी नाल सफाई करता जावे कि कहते क्यों, कहते पता नहीं उस रस्ते ते कदों बामण जी ने आ जाना। ये हालात सी उस वेले। एक फिल्म आई है शूदर तू खालसा, वो फिल्म वेखियो, उस हालात दसे गए उन्हां समयां दे किहो जिहे हालात सन, किवें सारा कुछ किया गया ते गुरु नानक पातशाह दा जोर लग गया सानू इन्हां चीज़ां चों बाहर कढण दा। बहुत जोर लग्या गुरु साहब का जी। उन्होंने मन लिया सी, एक तो हुंदा है ना गुलाम, एक हुंदा मानसिक गुलामी। जिहड़ा बंदा गुलाम है ना, उन्होंने तो आज़ाद किया जा सकता है जी, वो तो हो जाएगा आज़ाद। पर जिहड़ी मानसिक गुलामी है ना, ये तो आज़ाद नहीं कदे होया जा सकता। ये बड़ी खतरनाक है। जे कोई बंदा मानसिक गुलाम बन जाए ना, बहुत खतरनाक है। जदों हाथी छोटा होंदा है ना, उहदे पैर ते रस्सी पा दी जाती, वो रस्सी नूं तोड़न की कोशिश करता है, छोटा होने करके वो च इन्नी समर्था नहीं हुंदी, वो रस्सी नूं नहीं तोड़ पाउंदा। पर जदों जदों वो वड्डा हो जाता है ना, वड्डा होके भी उहदे पैरां 'च एक बेड़ी पाई हुंदी है, एक रस्सी पाई हुंदी है, वो दरख्त नूं बन्नी हुंदी है,
ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਹੈ, BC ਹੈ ਕਿ SC। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ SC ਹੈ, BC ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਸੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਸੀਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਗਾਰਚੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਆ। ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਬੱਧੇ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਖਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਗੁਰ ਕਹੈ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਏ ਕੁਸਲ ਬਗੁਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਗੁਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾ ਗੁਰ ਕਹੈ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ